ને પાછું ચાલુ કર્યું છે. એટલે આપણે એક મુદ્દો ચર્ચા કરી કે પોઝિટિવ વિચારો, અને આ પોઝિટિવ વિચારો થકી એક આપણા જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ બદલાય છે અને આપણે એને એટીટ્યુડ કહીએ છીએ. ત્યારે એક તણાવભરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે પોઝિટિવ વિચારો અને પોઝિટિવ વિચારો થકી જિંદગી પ્રત્યેનો આપણો અભિગમ ખૂબ જ ભાગ ભજવે છે. અને આ એટીટ્યુડ એ તણાવભરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ચેન્જ યોર એટીટ્યુડ, ફાઇન્ડ અધર વેઝ ટુ થિંક અબાઉટ ધ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન. જ્યારે બી આવી કોઈ વિકટ પરિસ્થિતિ અથવા તણાવભરી પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે તમારો એના પ્રત્યેનો અભિગમ બદલવાની જરૂર છે. અને આ અભિગમ જો બદલાશે તો આપોઆપ આ તમે તણાવભરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકો છો. મિત્રો, મેં પહેલા જ વેબિનારમાં જેમ કીધું હતું, લાઈફ ઇઝ 10% વોટ હેપન ટુ અસ એન્ડ 90% હાઉ વી રિએક્ટ ટુ ઇટ. જિંદગીમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ ફક્ત 10% જવાબદાર છે, પણ એ જિંદગીમાં એ જે કંઈ પરિસ્થિતિ આવે છે તમે એને કેવી રીતે લો છો, કેવી રીતે રિએક્ટ કરો છો, ધેટ મેક્સ એ 90%. કે તમારા જિંદગીમાં હાઉ યુ રિએક્ટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પણ કોઈ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે તમે એનો સામનો કેવી રીતે કરો છો, તમે એનો રિએક્ટ કેવી રીતે કરો છો, એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ વસ્તુને મારે સમજાવવા માટે હું તમને એક એક્સરસાઇઝ આપણે બધા મિત્રો જોડાય એ પહેલા એક એક્સરસાઇઝ કરાવવા ઈચ્છું છું કે આપણે આ એક્સરસાઇઝ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં ઘણા બધા મિત્રો આપણી જોડે જે જોડાવાના બાકી છે એ જોડાય. તમને તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં હું એક્સરસાઇઝ કરવા માંગુ છું ને આ વસ્તુ એક નાની અમથી એક્સરસાઇઝ થકી આપણે સમજાવવા માંગુ છું. આપની જોડે આવો કોઈક ઘરમાં રૂમાલ હશે અથવા કોઈક દોરી હશે તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આવો કોઈક રૂમાલ લો અને રૂમાલના 2 છેડાને આ રીતે પકડવાના છે. દરેક મિત્રને વિનંતી કે તમે આ એક્સરસાઇઝ કરશો તો તમને હું જે કહેવા માંગુ છું કે વધારે સમજાવશે. મારા દરેક મિત્રોને વિનંતી કે આપણા બીજા મિત્રો જોડાય પહેલા આપ સર્વેને વિનંતી કે આપની જોડે જે હેન્ડ કરચીફ હોય અથવા રૂમાલ હોય કાં તો એક દોરી પણ ચાલશે, વાયર પણ ચાલશે, કોઈ પણ આવી એક વસ્તુ તમે આપ લો અને આપ એક્સરસાઇઝ કરવા પ્રયત્ન કરશો તો આપને હું જે કહેવા માંગુ છું બહુ સારી રીતે સમજી શકશો. દરેકને વિનંતી કે તમારી આસપાસ કોઈક રૂમાલ હોય અથવા કોઈક દોરી હોય, કોઈક વાયર હોય એ લો અને હું જે કહું છું, જે કરવા માંગુ છું એ આપણે કરવાનું છે. રૂમાલ જે લો છો એને 2 છેડા પકડીને આ રીતે તમે આવો એક રૂમાલ ને આ રીતે લેવાનો છે. દોરી પણ ચાલશે, કોઈ પણ વસ્તુ તમે આપ લઈ શકો છો. આ લીધા પછી કેટલીક કન્ડિશન છે. જીવનમાં કશું કન્ડિશન વગર મળતું નથી. એમાં આ રમતમાં પણ એક કન્ડિશન અને આ કન્ડિશનમાં અવાજ ચાલો. હલો, તમારે એ રૂમાલને હલો, લીધો આ રીતે અવાજ સંભળાય છે? એક રૂમાલ લીધો, એ રૂમાલના એક છેડાને અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે આ બાજુ એક બાજુનો છેડો પકડ્યો અને બીજો છેડો પણ એક આંગળીના અંગૂઠાથી આ રીતે પકડ્યો. હવે તમારે કરવાનું છે કે આ છોડ્યા વગર કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આંગળી કે અંગૂઠાને છોડવાનું નથી અને આ રૂમાલમાં ગાંઠ મારીને બતાવવાની છે. તમારે આ રીતે પકડ્યા પછી આ રૂમાલમાં ગાંઠ મારીને બતાવવાની છે. કોઈ પણ રીતે આ રૂમાલમાં એક ગાંઠ મારીને બતાવો. રૂમાલના 2 છેડાને અંગૂઠા અને આંગળીની વચ્ચે પકડી છે અને કોઈ પણ રીતે એ છોડ્યા વગર એને ગાંઠ મારીને બતાવવાનું છે. આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આપ સર્વે આના માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને કદાચ કોઈનાથી થઈ જાય તો મને કહેશો કે કોને કરી બતાવ્યું. દરેક જણ પ્રયત્ન કરે.
તમે આ પ્રયત્ન કરશો તો આમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે. હું આપને આ રમતમાં શીખવવા માંગુ છું. અને ત્યાં સુધી આપણા ઘણા બધા મિત્રો જે જોડાયા નથી એ જોડાઈ જશે. હા, હેલો વિમલ સર. હા, એક મેસેજ કર્યો છે કે સર કાઇન્ડલી યુઝ ઇંગ્લિશ ઓર હિન્દી. શું કાઇન્ડલી યુઝ? हेलो, काइंडली यूज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज. ओके ओके, हाँ हिंदी में बात करेंगे, ठीक है. वी विल टॉक कर इंग्लिश और हिंदी. तो व्हाट आई वांट टू टेल के यू हैव टू take one hand cut it. You should not release your index finger or thumb. You have both hands should be fixed with your index finger and thumb, and you have to try to make a knot. You have to make a knot. Is it possible for anyone to make a knot without releasing your finger? है किसी ने भी इसका ट्राई किया? और किसी से अगर हुआ है तो बताइए कि किससे क्या हो चुका है? अगर किसी ने किया हो तो मुझे बता दे कि मैं उसे कर सका. मित्रों हम, हाँ बोलो. हाँ मैं ट्राई करूँ से જોઈ લેજો. हाँ बोल. ગાંઠ મારવાની. हाँ આ વિડિયો દેખાય છે? हाँ બરોબર છે, દેખાય છે. કમાર છોડવાની નથી. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ છોડવાની નહીં. હા નથી. ખાલી આ બે જ પકડવાનું. આખા હાથથી નહીં પકડવાનું. અંગૂઠો યુ હેવ ટુ યુઝ ઓનલી. તે છોડી દઉં છું. ના છોડતો નથી. હા હા કર કર. તારો હાથ બહાર વચ્ચે રહેવી જોઈએ. ગાંઠ બહાર એ બહાર કાઢી બતાય. બહાર કાઢ તો હાથમાં રાખ જ. બહાર નીકળે ત્યારે છૂટી જાય છે. ના નથી છૂટતો. બહાર રાખ. એ બહાર છૂટી ગઈ. આંગળીની વચ્ચેની મારા હાથની વચ્ચે રહેવી જોઈએ. રૂમાલમાં રહેવી જોઈએ. આંગળી આની પર ના રહેવી જોઈએ. ઓકે ઓકે. તું હાથ પર રાખું છું, આ રીતે નહીં. હા ઓકે, હું ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરું છું. આ તમે જે કઈ वॉट एवर आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो सब ये जो प्रॉब्लम है उस पर ट्राई कर रहे हैं. हमें कुछ अलग करना है. जैसे ये रुमाल है, मैंने ऐसा पकड़ा था लेकिन मैंने पकड़ते पहले यहाँ रख दिया. आप देख सकते हो ये मैंने रख दिया है. Now I have to put my left hand on the right shoulder and left hand is like this. आप एक हाथ से ये लेना है, ये उल्टा करना है. आपको क्या करना है, हम सभी जो ट्राई कर रहे थे, ये जो रुमाल है इसे ऐसा ऐसा कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था. हमारा प्रॉब्लम ये रुमाल है और हम रुमाल को इस तरह मोड़ते थे कि ऊंचो नीचो આગળ પાછળ કરીને એને ગાંઠ મારવા પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ એ પોસિબલ નતું થતું. તમારે આમાં જે વિચારવાનું છે કંઈક ડિફરન્ટલી. તમારે જે પ્રોબ્લેમ છે આ પ્રોબ્લેમને નીચે મૂકી દો અને તમે આ રીતે હાથ લીધા પછી જમણા હાથથી ડાબી સાઈડ પકડો અને ડાબા સાઈડથી જમણી સાઈડ પકડો અને પછી खबर पड़ी. आपने देखा किस तरह हुआ है फ्रेंड्स? आ एक्सरसाइज जे हती ये एक्सरसाइज मांथी हेलो हेलो मारो जवाब नहीं आवतो. हेलो
ના આવે છે વાત તમારો? મારો અવાજ આવે છે? મને નથી સંભળાતો. આવે છે ક્લિયર છે. ઓકે, આવી ગયું. audible. ऑडिबल ना? Yes. ओके, तो ये एक्सरसाइज में हमने ये सीखा है कि हम जब भी कोई हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमें एक चुनौती देके कि इसे नॉट, इस रुमाल में नॉट लगा के देखे, तो हमने क्या किया सबने, हम इस पे काम कर रहे थे, रुमाल को ऐसे कर रहे थे, इसको ऐसे कर रहे थे, हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे। हमारे जीवन में कभी भी कोई चुनौती आती है, कोई तनाव भरी स्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हम समस्या, परिस्थिति या लोगों पे काम करते हैं बजाय अपने आप पे। जब भी कोई परिस्थिति आए तो परिस्थिति को चेंज मत करो, अपने आप को चेंज करो। जो प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम को साइड पे रख दो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, आपको बदलना है प्रॉब्लम के हिसाब से। मैंने प्रॉब्लम को जैसा था वैसा रख दिया नीचे और मैंने अपने आप में बदलाव लाया। मैं जिस तरह से ले रहा था उसकी जगह उल्टा लिया मैंने। दाहिने हाथ से लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड को पकड़ा और राइट साइड से लेफ्ट राइट साइड को पकड़ा, फिर उसे निकाला तो मैं नॉट कर सका। कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई तनाव भरी स्थिति आए, तो उस स्थिति पे काम करने की बजाय अपने आप पे काम करिए, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। हम जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई तनाव भरी परिस्थिति आती है, कोई चीज आती है, तो हम उसे गालियां देते रहते हैं बजाय अपने आप में कुछ सुधार करने की बात करते हैं। हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, हम खुद नहीं बदलते। हम परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे में बदलाव लाने की सोचते नहीं है। उसी के कारण हम तनाव भरी परिस्थिति में जाते हैं। वी हैव टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव। कोई परिस्थिति, कोई तनाव या कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम किस तरह उसे डील कर रहे हैं, हम उसे किस तरह फेस कर रहे हैं, हम उसे किस तरह ले रहे हैं, उस पर हम सोचते रहते हैं। उसी के कारण हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमने इस एक्सरसाइज में हमने काफी कुछ चीज सीखी है। यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। आपके लाइफ में क्या आएगी परिस्थिति ये कोई फिक्स नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। आपके हाथ में नहीं है कि सामने वाला आपसे किस तरह बात करेगा, आप में किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी। हम आज नवरात्रि का दूसरा नौरता चल रहा है, नवरात्रि गरबा होगा कि नहीं होगा वो अपने हाथ में नहीं है, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। यू रिमेन स्टेजफुल टिल यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम। जब तक हम रुमाल पे ट्राई कर रहे थे तब तक हमें कुछ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया तब मुझे उसका सॉल्यूशन मिला। यू हैव टू focus on yourself rather than the problem. It depends that how you handle the situation. आप किस तरह परिस्थिति को हैंडल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको सॉल्यूशन को दूसरी तरीके से सोच के इसका सॉल्यूशन लाना है। जब परिस्थिति को वही चीज से आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, कुछ हट के सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये तनाव भरी स्थिति प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, यू हैव टू टॉक पॉजिटिवली, यू हैव टू फील पॉजिटिवली। आपको हर बार पॉजिटिवली सोचना है, बात करना है, उसके बारे में पॉजिटिव फील भी करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द सेल्फ रेदर देन द प्रॉब्लम। आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते लेकिन आप मनोस्थिति बदल सकते हो। आप अपने सोच बदल सकते हो, सामने वाले की सोच बदलना आपके हाथ में नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक वो प्रॉब्लम और का सॉल्यूशन नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू फोकस हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल करना है तो आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ये चीज हो सकती है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, तभी जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। लेकिन आप प्रॉब्लम को ही पकड़ के बैठे रहोगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यू हैव टू एक्ट ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। यही ये एक्सरसाइज के माध्यम से हमें जानना है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आएगी जब आपको सामने के वाले के बारे में सोचने की जगह अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं इसके साथ कैसे निपट सकता हूँ, मैं इसके कैसे निपट सकता हूँ, मैं इस परिस्थिति में कैसे रहूंगा। मैं बारिश आएगी
तो मैं छाता लेके जाऊंगा, मैं रेनकोट लेके जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं क्यों बारिश आई उसके वजह उसकी बातें करता रहूंगा तो मैं भीगूंगा। जब बारिश आती है तो छाता लेके जाने की जवाबदारी आपकी होती है। यू कैन नॉट कंट्रोल द रेन, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द, आप वो भीगने से आप अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन बारिश को होने से नहीं रोक सकते। तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको आपकी मनोस्थिति बदलनी है, परिस्थिति बदलने का आपके पास कोई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आप अपने आप को बदल सकते हो। तो जब आप अपनी मनोस्थिति बदलोगे तब जाके आप इस तनाव भरी स्थिति से बाहर आ पाओगे। तो फॉर टू कंट्रोल स्ट्रेस यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ रहता है द ऑपोजिट पर्सन। आप सामने वाली चीज या सिचुएशन और परिस्थिति को कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी आप करोगे वो आपके ऊपर करना है, तब जाके आप इसे मैनेज कर पाओगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द हाउ यू मैनेज the self in the difficult situation or stressful situation। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन पाओगे। इसीलिए गांधी जी का एक थॉट्स है, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। आपके सोच जो सही रखोगे, आपकी सोच पॉजिटिव रखोगे तो आपके वर्ड्स भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब आपके वर्ड्स पॉजिटिव हो गए, कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड्स बिकम योर बिहेवियर। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे, जैसा आप सोचोगे वैसे आप शब्द बोलोगे, वैसे आप शब्द का रोज इस्तेमाल करोगे, ऐसे आप बिहेवियर आपकी स्टाइल लाइफस्टाइल बढ़ती जाएगी। जैसे आपका बिहेवियर हर रोज पॉजिटिव होगा तो आपकी हैबिट भी पॉजिटिव होगी, आपकी हैबिट पॉजिटिव होगी तो आपकी लाइफ वैल्यूज भी पॉजिटिव होगी। और जब आपकी लाइफ वैल्यूज भी पॉजिटिव होती है तो आपका डेस्टिनेशन भी वैल्यूएबल होता है। योर डेस्टिनी बिकम, आप जो जीवन में बनना चाहते हो, जो डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो, वो जाने के लिए आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, आपकी पॉजिटिव सोच होनी जरूरी है, आपका पॉजिटिव बिहेवियर होना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। आज से चिंता छोड़ो, जिंदगी जीना चालू करो। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग। बाय फीड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आपको हर बार कुछ पॉजिटिव सोच के ही आप जिंदा आप रहोगे, तब आप कुछ हासिल कर सकोगे और आप अपने चूज की हुई डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसी सोच वैसे आपके लाइफ हो सकती है। तो टू अवॉइड द स्ट्रेस, आपके सोच और आपका एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है। तो जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के मैनेज करने की बात है तो पहले आपका एटीट्यूड और आपकी सोच बदलने की जरूरत है। थर्ड थिंग, तीसरी और इम्पोर्टेंट थिंग है वो स्टे इन प्रेजेंट। वर्तमान में जिए, स्टे इन प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट, बी लाइक ए चाइल्ड। कोई भी परिस्थिति हो तो आप अभी क्या है उसके बारे में सोचे, भूतकाल में क्या था और भविष्य भूतकाल में क्या था उसके बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में, उसके बारे में सोचे बिना और आगे जाके क्या होगा उसकी चिंता करे बिना अभी जो है उसमें जिंदा रहे। स्टे इन प्रेजेंट, बी इन दिस मोमेंट। आज अभी इस पल में मैं क्या कर रहा हूँ वो मायने रखता है। मैं पहले क्या था, मेरे जिंदगी में पहले क्या हुआ था, वो अभी कोई मायने नहीं रखता। जब तक आप जिंदा हो इस मोमेंट में जियो। कल क्या होगा किसको पता। आज अभी आप जो कर रहे हो उसमें जियो तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। और उसके लिए एक बच्चे की तरह रहना चाहिए। छोटा बच्चा होता है, न उसे न भविष्य की चिंता है न भूतकाल में क्या हुआ था उसकी चिंता है। वो जब भी रहता है तो वो प्रेजेंट में रहता है, उसे भविष्य न भूत न भविष्य, उसे कोई भूतकाल या भविष्य काल की चिंता नहीं है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिस तरह जीता है उस तरह जीना चाहिए। यस्टरडे इज द हिस्ट्री, टुमारो इज द माइस्ट्री। जो भूतकाल है वो हिस्ट्री हो चुका है और भविष्य में क्या होगा एक पजल है, एक पहेली है। मुझे क्या पता कल क्या होने वाला है। और जो भूतकाल था वो तो चाहे कितना भी अच्छा था वो हो चुका है, उसका अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। टुडे इज द गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। आज जो है वो आपके लिए तोहफा है, इसीलिए आज को हम तो प्रेजेंट बोलते हैं। व्हाट्स डन इज डन, ये कुछ हो गया वो हो गया है। व्हाट्स गॉन इज गॉन, जो कुछ चला गया वो चला गया है। वन ऑफ द बेस्ट लाइफ लेसन इज लर्निंग हाउ टू लेट गो एंड मूव ऑन। जिंदगी का सबसे बेस्ट लेसन यही है कि लर्निंग हाउ टू लेट गो। जो हो चुका है उसे जाने दो, जो हो गया वो जाने दो, जो गया है उसे भूल जाओ। अभी क्या है उसको देखो और लर्न हाउ टू लेट गो एंड मूव ऑन। जो कोई खराब परिस्थिति है, कोई तनाव परिस्थिति है, उसे लेट गो कैसे करके आगे मूव ऑन कैसे करना है
वो हमें जानना है। इट्स ओके टू लुक बैक एट योर मेमोरी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप मेमोरी भूल जाओ, इट्स ओके टू लुक बैक, आप मेमोरी की तरफ देखिए, बट नेवर लेट द पास्ट स्टॉप योर मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन आपके भूतकाल में इतनी जंजीरें मत बांधिए कि जो आपको भविष्य में जाने से रोक दे। भूतकाल को भूल जाइए, लेट्स मूव ऑन। कुछ कोई खराब परिस्थिति आई है, कोई खराब स्थिति, कोई खराब तनाव परिस्थिति आई है, तो उससे लेट गो करके आप आगे कैसे जा सकते हो उसके बारे में सोचिए। इफ यू आर डिप्रेस, इफ यू आर लिविंग इन पास्ट, अगर आप भूतकाल में जीते तो आप डिप्रेशन में रहोगे। इफ यू आर एंग्जियस, यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, आप चिंतित हो, आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो आप चिंतित रहोगे। बट आपको शांति से जीना है, तो यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंस। अभी जो है इसमें जीना सीखिए, तो लिव इन द प्रेजेंस। डोंट आस्क व्हाई इट हैपेंस। आप ये बार बार मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये मुझसे ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मुझसे ही ऐसे क्यों बात की, ये इसने मुझे क्यों ऐसा बोल दिया। कुछ भी है जीवन में जो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मत पूछे। लेकिन ऑलवेज हाउ आस्क हाउ शुड आई फेस इट। मैं इसका सामना कैसे करूंगा, इसके बारे में सोचिए, बजाय इसको गाली देते रहिए या इसे कोसते रहिए। आपको ये सोचना है कि अब मैं इस परिस्थिति में आ ही गया हूँ, तो इससे बाहर कैसे निकलूंगा। इसके बारे में अगर सोचोगे तो आप जल्दी से इस मोमेंट्स में तो बाहर आ जाओगे। इसीलिए बोला है कि वर्तमान में जीना सीखे, तो तनाव अपने जीवन में नहीं आएगा। फ्यूचर की चिंता छोड़िए, भूतकाल को भूल जाइए, तभी जाकर आप आपके जिंदगी के मजा ले सकते हो, और तभी आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। तो हमने 3 चीजें सीखी। वर्तमान में जीना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। दोस्तों, यहाँ मैंने आपने एक स्लाइड में देख सकते हो, एक बॉटल है कोका कोला की और एक दूसरी ऑक्सीजन पानी की मिनरल वाटर बोतल। अब जब कोका कोला की बोतल को हिलाते हो, ऐसे बहुत बार हिलाओगे, फिर उसका ढक्कन खोलोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ के कोक में से सब बाहर निकल आता है। लेकिन ये बोतल को आप कितनी भी बार हिलाओ, उसको कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ में इस कोक बोतल की तरह हो, आपको कोई हिलाता है, आपको कोई परिस्थिति आती है जो आपको डगमगा देती है, तब आप इस बोतल की तरह छलक जाते हो। लेकिन अगर आप शांत है, पॉजिटिव है, और आप इस बोतल की तरह कूल है, बी कूल, ऑक्सीकूल की बोतल है, बी कूल, आपको कितनी भी बार हिलाया जाए, आपको कितनी भी बार झंझोड़ा जाए, आपको कितनी भी गाली दिया जाए, लेकिन आप उसी परिस्थिति में कहीं रिएक्ट नहीं करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, तब जाके आप ए ऑक्सीकूल की, बी कूल जैसी बोतल के जैसे आप कोक की तरह रहोगे, तो आधी बोतल ऐसे ही खाली हो जाएगी, आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको कोई भी परिस्थिति, डगमगाने वाली परिस्थिति हो, तो रिएक्ट नहीं करना है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन आइदर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, विच विल यू चूज। आप क्या बनना पसंद करोगे, ऑक्सीकूल की बी बोतल जैसे बी कूल रहोगे, या कॉफी की बोतल की तरह छलकाओगे। अगर आप इस बोतल की तरह छलकाओगे, यानी व्हेन यू रिएक्ट, यू आर रनिंग ऑन ऑटो पायलट। आपको कोई कभी गाली दे देता है और आप रिएक्ट करते हो, तो आप सामने को उसे गाली दे देते हो, जैसे के साथ पैसा का व्यवहार कर देते हो और उसे गाली दे देते हो, तब वो रिएक्शन होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं होता है। और आप जब रिएक्शन मोड में होते हो, तब आप ऑटो पायलट मोड में आते हो, मीन्स सामने वाला जैसा करता है ऐसे आप रिएक्ट करते हो, और वो रिएक्शन में आप सोचते नहीं हो, और यू डू एंड से थिंग विदाउट थिंकिंग फर्स्ट। आप सोचे बिना, समझे बिना उसे रिस्पॉन्स करते हो, सो इट इज ए रिएक्शन। यू जस्ट एक्ट इन रेसिप्रोकेट टू द अदर पर्सन एक्शन। सामने वाला कैसे आपको गाली देता है, तो आपको सामने गाली देते हो, दैट इज द रिएक्शन। रिएक्शन इज लाइक ए पपी। यहाँ एक कुत्ता दिखाया है, रिएक्शन लाइक ए पपी विच हैजंट ट्रेन, वो उसे ट्रेन नहीं किया गया। वो जो छोटा कुत्ता है, अगर वो भौंकता है तो सबके सामने भौंकता रहता है, उसे नहीं पता वो भौंकता क्यों है। तो अगर पास में से कोई जाएगा तभी भी भौंकेगा, एंड देन ही विल स्टार्ट विथ, वो कुछ भी खाने लगेगा, दरवाजे में भी दांत लगाने लगेगा, कुछ भी तोड़ देगा। ही रिएक्टिंग व्हेनेवर जो गांव, जो मोहल्ले का कुत्ता है, जो ट्रेन नहीं है, वो रिएक्ट करता है। और जब अपने घर में अगर कोई पालतू कुत्ता है, जो ट्रेन पपी है,
वो क्या करता है, वो सबके सामने नहीं भोगता है, अगर उसके घर में कोई आता है तभी भोगता है। वो खाना भी कहीं कहीं तक नहीं खाता है, जब उसे देना, उसे खाना मिलता है तब वो खाता है। तो द पर्सन, दिस पपी इज रिस्पॉन्डिंग एंड दिस पपी इज रिएक्टिंग। So there is a difference between reaction and the responding. When you respond, you first explore your mind, the possible outcome of your reply before saying a word. आप जब रिस्पॉन्ड करते हो तो क्या होता है, अगर आपको कोई गाली देता है तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करने के बजाय आप रिस्पॉन्ड करते हो। रिस्पॉन्ड जब करते हो तब आप 1 मिनट के लिए ठहर जाते हो, फिर आप सोचते हो कि अगर उसने गाली दी है, मैं सामने गाली दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप सोच समझ के उसकी गाली का जब जवाब देते हो, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ठहरने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद, उस परिस्थिति के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने के बाद फिर देखोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कहूँ उसे तो ये जवाब सही है। वो सोच समझ के जो सिचुएशन में जो आप जवाब देते हो उसे रिस्पॉन्डिंग कहते हैं, वो रिएक्शन नहीं होता है। तो रिस्पॉन्स आर मोर लाइक द वेल ट्रेन एंड वेल बिहेव डॉग। वो सबके जगह भौंकता नहीं है, सब आए कि उसके सामने भौंकता नहीं है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह हमें रिएक्ट हुए बिना रिस्पॉन्ड करना है। हमें हर परिस्थिति में देखना है कि सामने वाला भले गाली देता है, सामने वाला की जो सामने जो परिस्थिति है चाहे कितनी भी खराब क्यों हो, लेकिन मैं जो रिस्पॉन्स दूंगा वो मैं सोच समझ कर रिस्पॉन्स दूंगा। मैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सोचने के बाद रिस्पॉन्ड करूंगा, तब जाके आप उस तनाव परिस्थिति में से बाहर आ सकते हो। तो इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू कैन आइदर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह रिस्पॉन्स करना है। आपको एक कोक बॉटल की तरह रिएक्ट करना है या ऑक्सीकूल बॉटल की तरह रिस्पॉन्स करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप रिस्पॉन्ड करते जाओगे, जितना आप कुछ रिस्पॉन्ड करने के पहले 1 मिनट ठहर जाओगे और सोचोगे, फिर सोच समझ कर जब जवाब दोगे और जो होता है उसे तब जाके स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट द रिएक्ट। दूसरी एक बात है, लर्न टू लेट गो। एक चौथी बात जो मैंने बताई है, यहाँ आप एक ग्लास देख सकते हो, पानी भरा ग्लास। अगर ये पानी भरा ग्लास हम सभी एटीट्यूड के लेक्चर में सुनते हैं कि आधा भरा हुआ है आधा खाली है। मैं आज उधर आधा भरे हुए या आधा खाली गिलास की बात करने नहीं आया। मैं आपको ये पूछने आया हूँ कि अगर आपको ऐसा आधा पानी भरा हुआ ग्लास आपको पकड़ाया दिया जाए, तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्लास कितना वजनदार है, इसका वेट क्या है, तो कोई बताएगा इसका वेट 250 ग्राम है, 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, कोई बताएगा कि 500 ग्राम है। बट द एब्सोल्यूट वेट इज डजंट मैटर। ये वेट अगर सपोज 300 ग्राम का एक्चुअल वेट है, लेकिन मैं उसे 5 मिनट के लिए पकड़ता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो 500 मिलीग्राम का ही लगेगा। लेकिन मैं एक ग्लास 1 घंटे के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखता हूँ, भले उसका वजन 250 ग्राम है, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे वो 250 ग्राम वाला पानी का ग्लास 2.5 किलो का लगने लगेगा। अगर वही ग्लास में 3 घंटे तक पकड़ के रखता हूँ तो 250 ग्राम वाला वजन 2.5 किलो का नहीं 2.5 टन का लगने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा हाथ दर्द करने लगे। और अगर मैं पूरे दिन तक 3-4-6 घंटे तक पकड़ के रखूँ, शाम तक पकड़ के ऐसे रखूँ, तो मेरा हाथ हो सकता है पैरालाइज और नम भी हो जाए। और परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन हाउ फार यू होल्ड ऑन, आप वो परिस्थिति को कब तक पकड़ के रखते हो, एक ग्लास को आप कब तक पकड़ के रखते हो, तब उसी पे उसका वजन डिपेंड करता है। अगर आप तो तुरंत उसे छोड़ देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आधे घंटे से 1 घंटे का फर्क पड़ेगा तो थोड़ा पेन होगा, 4-5 घंटे हो जाते तो ज्यादा पेन होने लगेगा, और 6-7 घंटे से ज्यादा पेन करोगे तो आपको पैरालाइज कर देगा। लाइफ में भी ऐसा ही है, कोई परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, अगर आपके पकड़ के रखा है तो आपको आपको कुछ नहीं होगा। आप आपने छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। आपने आधे घंटे से 1 घंटे तक आपने उसे पकड़ के रखा तो आपको उसके बारे में चिंतित होने लगोगे, आप उससे कंसर्न होने लगोगे, एकाध उसके बारे में ही सोचते रहे 3-4-5 दिन। अगर वही परिस्थिति के बारे में सोचते रहे तो आप डिप्रेशन महसूस करने लगोगे, आप एंजाइटी महसूस करने लगोगे। और हो सकता है अगर आपने उसी बारे में सोचने का चालू ही रखा तो 4-5 दिन के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओ। कहने का मतलब यही है कि हाउ लर्न टू लेट गो।
परिस्थिति को पकड़ के मत रखे, आप उसको कितनी तरह छोड़ देते हो उस पे आपको दिमाग स्ट्रेस डिपेंड करेगा। स्ट्रेस रहता है, अगर स्ट्रेस कोई भी परिस्थिति को आप लंबे समय तक पकड़ के रखोगे तो इट कॉज पेन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर लाइफ। तो किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन को पकड़ के मत रखिए, ट्राई टू लेट गो एंड मूव ऑन करिए, तभी जाके आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है परसेप्शन। स्ट्रेसफुल कंडीशन की जैसे लाइफ में जब स्ट्रेस आता है उसकी एक और कंडीशन है उसे परसेप्शन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एक हाथी है, एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में 4 या 5 अंधे लोग रहते थे। वो गांव में एक हाथी आता है, तब ये 4 और 5 जो फ्रेंड्स है वो जो अंधे हो, जो देख नहीं सकते, वो हाथी को देखने जाते हैं और वो देख तो नहीं सकते तो वो हाथी को महसूस करते हैं। किसी ने उसकी सूंड को महसूस किया, किसी ने इसको पैर को महसूस किया, किसी ने उसके कान को महसूस किया, किसी ने इसको पूंछ को महसूस किया, किसी ने इसको बॉडी को महसूस किया। फिर ये 4-5 जो फ्रेंड्स है वो हाथी को महसूस करने के बाद और देखने छू कर आए, बाद में वो चारों मिलकर बात कर रहे थे कि भाई हाथी कैसा था। तो जिसने सूंड पकड़ी थी उसे लगा कि ये कोई पाइप जैसा था, किसी को लगा ये सांप जैसा था, किसी को लगा एक झाड़ के वो क्रंक जैसा, वो थड़ के जैसा था, किसी को कान पकड़ने वाला का वो पंखा जैसा था, किसी ने बॉडी को देखा तो वो लगा कि एक दीवार जैसा था। तो सब अंदर अंदर झगड़ने लगे कि नहीं ये तो ऐसा था, वो बोलता था ये तो सांप जैसा है, ये बोलता है तो झाड़ के थड़ जैसा है। तो किसी ने साथी को बारे में आप लोग अंदर अंदर झगड़ते रहे और वो बोलते कि आप गलत हो, मैं सही हूँ, मैं गलत, आप सही नहीं हो, इस तरह झगड़ते रहे। हालांकि सत्य ये था कि सब सच थे, लेकिन वो पूरा सच नहीं था, वो आधा सच था। जिसने जो महसूस किया वो उसने बताया। हालांकि सभी ने हाथी के बारे में सबने सच बताया, लेकिन वो पूरा सच न होने से कारण, वो पूरी उसकी जानकारी न होने के कारण वो लोग अंदर अंदर झगड़ते रहे। परसेप्शन वही है। परसेप्शन के दूसरे मैंने यहाँ एक चीज बताया कि यहाँ 2 आदमी है, इसे ये 6 दिखता है और इसे 9 दिखता है, और दोनों झगड़ते रहते हैं, नहीं ये 9 है, ये बोलता है नहीं ये 6 है। और लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है, हम हमारे एंगल से देखते हैं, हम सामने वाले एंगल से वो परिस्थिति को नहीं देखते हैं, और हमारा अनुभव सामने वाले के अनुभव से अलग होता है। जैसे इधर इसको ये 4 रोड्स दिखते हैं और इसे इधर से इसे 3 रोड दिखते हैं, हालांकि दोनों सही थे, लेकिन दोनों का सच एक नहीं था। इसे यहाँ से 4 दिखते थे, इसे यहाँ से 3 दिखते थे। उसी तरह ये फोटो में अगर आप देखोगे तो किसी को ये जवान स्त्री दिखती है और किसी को दूसरे एंगल से दिखता है तो ये बूढ़ी औरत दिखती है। अगर ये आंखें है, ये आंख और एक कान है तो ये जवान स्त्री दिखती है, लेकिन अगर यही 2 आंखें और मुंह यहाँ आप देखोगे, आपकी नजर में इसको मुंह बनाओगे और ये 2 आंखें बनाओगे तो बूढ़ी औरत दिखती है। हालांकि चित्र वही है, किसी को इसमें से जवान स्त्री दिखती है तो किसी को बूढ़ी औरत दिखती है। हालांकि दोनों अपने अपने नजरिए से सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के नजरिए से गलत थे। यहाँ ऐसे ये कोई फ्लावर वास दिखता है तो किसी को एक दो बच्चे का मुंह दिखता है। कहने का मतलब यही है कि हम एक ही चीज को अलग अलग नजर से देखते तो चीज अलग अलग नजर आती है। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग। अगर ये इसे 9 दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 सोचने वाला गलत है, इधर से इसे 4 दिखते है इसका मतलब ये नहीं कि 3 वाला गलत है, पूछ को ये इसे रोप जैसा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि दीवार वाला गलत है। एक आदमी सही है तो दूसरा गलत है जरूरी नहीं है। यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन द लाइफ फ्रॉम माय साइड। मैंने उसके नजरिए से नहीं देखा, इसी के लिए वो मुझे सामने वाला गलत दिखता है। और जब जब लाइफ में प्रॉब्लम उसी के कारण आती है, हम अपने आप को सच मानते हैं और सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, और उसी के कारण लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम होते हैं। हम सामने वाले के नजरिए से तो लाइफ में परिस्थिति को देखने की कोशिश नहीं करते। वी आर ट्राई टू प्रूव अवर सेल्फ राइट, सामने वाले को गलत, वो गलत है तो ही मैं सही हूँ ऐसा जरूरी नहीं है।
वो उसके नजरिए से सही है, मैं मेरे नजरिए से सही हूँ, और वी में भी द डिफरेंट। हम मैं सही हूँ वो गलत है वो मत सोचिए, मैं सही हूँ, लेकिन वो जो सोच रहा है वो अलग एंगल से देख रहा है, अलग नजरिए से देख रहा है, वो हो सकता है वो भी सही हो। अगर आप लाइफ में ऐसा परसेप्शन रखोगे तब जाके आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं आओगे। तो लाइफ में परसेप्शन इज वेरी मच इसेंशियल। आप किस नजरिए से देखते हो, अगर आप नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आपको परसेप्शन आपका बदलना है, तभी जाके आप सामने वाले को गलत नहीं अलग पाओगे। और कोई भी परिस्थिति में सामने वाले के नजरिए से देखोगे तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को आप अवॉइड कर सकते हो। सामने वाला गलत है ऐसा सोचने की जगह सामने वाला मुझसे अलग है ऐसा सोचोगे तो जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। वी आर डिफरेंट। तो परसेप्शन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। चेंज योर माइंडसेट। जब भी कोई तनाव आए तो आपका माइंडसेट चेंज करना है। डोंट थिंक स्ट्रेस एज ए थ्रेट, वो भय है, वो डिमोरलाइज करना है, वो प्रेशर का कंडीशन है, वो ओवरवेलमिंग है, वो डेबिलिटिंग कंडीशन, ऐसा मत सोचिए। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, डोंट फाइट स्ट्रेस। उसे उसे साथ झगड़ने की, उसे फाइट करने की जरूरत नहीं। आपका नजरिया स्ट्रेस के लिए बदल लीजिए। आप ऐसा सोचिए कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव भरी स्थिति आई है, ये जो परिस्थिति है, ये जो आदमी है, वो मेरे लिए एक चैलेंज है। उसके साथ कैसे डील करना है, इस परिस्थिति में मुझे कैसे बाहर निकलना है, उसे एक चैलेंज तरीके आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उससे बाहर आ पाओगे। आप एक कंडीशन आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कुछ आप में बदलाव लाने के लिए, ये इससे स्ट्रेस से मोटिवेटेड आप लोगे तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। लाइफ, ये जो स्ट्रेस आया है ये आपके जीवन में चुनौती है, आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है, आप में कुछ बदलाव पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ही। ऐसा जब सोचोगे तो आप कुछ कर सकोगे। आप एक कंडीशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट है लेकिन ये मैनेजेबल है, इसका सॉल्यूशन है, ऐसा आप सोचोगे तो आप इससे बाहर आओगे। यू हैव टू फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज। आप उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसमें क्या अच्छा छुपा है, उसमें क्या लर्निंग लेसन है, आप उस पर फोकस करोगे तो आपको स्ट्रेस, आपको आपके स्ट्रेस के बारे में आपका नजरिया बदलोगे तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट टू एम्ब्रेस द स्ट्रेस। तो आपका नजरिया बदलने की जरूरत है जब कभी भी आप स्ट्रेस में आओ तो। और जब कभी आप स्ट्रेस में आते हो तो कीप काम एंड स्टे रियलिस्टिक। आपको ना निराशावादी या पैसिमिस्टिक होने की जरूरत है, ना ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, आपको रियलिस्टिक होने की जरूरत है। सेट प्रैक्टिकल गोल फॉर द डीलिंग विद द सिचुएशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप अपने बारे में कई बार अनरियलिस्टिक गोल रख देते हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो, और जब वो पूरी नहीं होती है तब आप स्ट्रेस फील करते हो। तो जिंदगी में हमेशा रियलिस्टिक गोल को सेट करना चाहिए, जिसके कारण आप जीवन में कभी भी उसे सॉल्व करने में आप तनाव न महसूस करो। यू हैव टू डेवलप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ योरसेल्फ एंड अदर। आप अपने बारे में भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए और सामने वाले के बारे में भी आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। ये मेरे लिए वो करेगा, ये वो करेगा, कि मैं ऐसा करूंगा। वो अगर हम वो नहीं कर पाते या सामने वाला अपने लिए नहीं करता तब जाके हम दुखी होते और तनाव में आते। तो जरूरी ये है कि अपने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए, तो आप जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगे। गेट ऑर्गेनाइज एंड टेक चार्ज। आप जीवन में बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड एंगेजिंग इन पुअर प्लानिंग, आप कोई प्लानिंग बिना और ऑर्गेनाइज नहीं करते तो इट्स लीड टू द फ्रस्ट्रेशन एंड और द क्राइसिस सिचुएशन, और आप क्राइसिस में आते हो, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, इट इज मोस्ट ऑलवेज लीड टू द फीलिंग स्ट्रेस। जब आप ऑर्गेनाइज नहीं होते हो, आप